جاب پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہو۔ اس کے بعد جب میری جاب سٹارٹ ہو جائے گی السلام علیکم ایوری ون۔ آج نئے سال کا نیا دن ہے، جنوری 1 ہے، تو سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، بہت بہت دعائیں۔ تو میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کروں گی، کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کوئی نیا دیکھنے والا ہے، میرے چینل کو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جو آواز ہے دنیا کے ہر بندے کے کانوں کے اندر پہنچے۔ آج بہت ہی خوبصورت دن ہے کینیڈا میں۔ یہ رات کو ہی میں آئی تھنک 11:30 بجے جب میں جانے لگی تھی، اوپر سونے لگے تھے، کیونکہ میرے گھر میں ہمارے یہاں میرے گھر میں تو ایسا نہیں، نہ میرے بچے باہر جاتے ہیں، نہ میں کبھی باہر گئی ہوں۔ ہم تو نیو ایئر والے دن گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت ہلا گلا تھا، یہاں بھی کچھ لوگوں کا ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو گھر میں رات کو جب میں اوپر جانے لگی تھی، میں نے باہر کھڑکی سے دیکھا، یہ خوبصورت ایک تھوڑی تھوڑی سی سنو پڑ رہی تھی، ابھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کیا خوبصورت ماحول ہے۔ ریئلی آئی لو اٹ۔ ابھی میں اس طرف آئی ہوں، میں نے کہا میں تھوڑی دیر، میں کل پورا دن گھر میں تھی، باہر نہیں نکلی تھی، لیکن آج میں نے کہا میں تھوڑی دیر باہر جاؤں، مجھے بہت اچھا لگا۔ ویدر اچھا ہے، اتنا نہیں ہے۔ ابھی میں جب گاڑی میں آ رہی تھی -4 تھا، لائک فیل سم تھنگ لائک می بی 6، بٹ بہت اچھا ہے۔ جب میں گلاسز پہن لیتی ہوں تو پھر مجھے اتنی سردی نہیں لگتی۔ جب گلاسز نہ پہنوں تو میری جو آنکھیں ہیں بہت سینسٹیو ہے، اتنی اس سے آنسو سٹارٹ ہو جاتے، پھر میں نہ بات کر سکتی ہوں، میں تو چکرا جاتی ہوں۔ چلے اس طرف میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت پیسفل پلیس ہے۔ سارے لوگ اس طرف ادھر ادھر، یعنی چھٹی کا دن ہے آج، تو کل سے میں نے جاب پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہو۔ اس کے بعد جب میری جاب سٹارٹ ہو جائے گی پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ گڈ ویڈیو۔ لیکن آج میں نے کہا میرا جو لاسٹ ڈے ہے، میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بہت خوبصورت جگہ دکھاؤں جی، مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہو۔ تو دیکھیے میں ابھی دوسرے اینگل سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ ابھی اس طرف سے یہ نیچے کی طرف اگر جاؤ نا تو نیچے ٹھہرو، میں اس جگہ جاتی ہوں نا، یہ اس طرف ابھی نیچے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اگر گرمیاں ہوتی تو میں نیچے جا کے وہاں پتھر پر ہی بیٹھ جاتی، کیونکہ یہ جو بطخ ہے نا، مجھے بطخ بہت پسند ہیں۔ بچپن سے مجھے مرغیاں اور یہ بطخ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ ابھی بھی جہاں میں دیکھتی ہوں پانی میں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں ہمیشہ ان کی ویڈیو بناتی ہوں۔ تو ابھی نیچے تو جا نہیں سکتے ہیں، لیکن میں ایسے کلوز اپ سے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ یہ ان دونوں تو نہیں ہوتی کیونکہ جب آئس ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ ہے کیونکہ یہ موسم بہت اچھا ہے۔ اس طرف اگر پیچھے بھی چلے جاؤ نا تو بہت بڑا جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، وہاں واکنگ کی بہت جگہ ہے۔ یہ آگے پیچھے جدھر بھی جاؤ یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ سارا علاقہ اس طرف جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ اسکول کی بلڈنگ ہے یہ، لیکن اس طرف یہ سارے اس کے آس پاس یہ گھر ہیں، یہ سارے گھر ہیں، یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں، اس میں لوگ گرمی میں ہی بہت زیادہ یہاں رش ہوتا ہے، لوگ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ یہ ان کا پارکنگ لاٹ ہے، لیکن یہ جو پانی ہے نا بیچ میں، تو یہاں پر آس پاس ہر جگہ پہ پارکنگ لاٹ ہے، بہت ساری گاڑیاں یہاں کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ گرمیوں میں یہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو رہائشی علاقہ ہے، اور دوسرا یہاں پر یہ لوگ زیادہ دوسرے جگہوں سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے گرمیوں میں۔ ابھی اس طرف سے میں چلتی ہوں، میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھاتی ہوں۔ یہ جو میرے ہاتھ کے میرے پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ جگہ یہ پاؤنڈ کے پاس ہی ہے۔ پہلے یہاں پر مجھے لگتا ہے کچھ تھا، یہ ریسٹورینٹ وغیرہ تھا، لیکن ابھی تو بہت عرصہ ہوا، میں نے کتنے سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں، یہاں ریسٹورینٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ جگہ بند ہوتی ہے، اس طرف یہ جو جگہ ہے یہ بند ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ڈیک بنا ہوا ہے، یہ میں بھی نیچے جا رہی تو یہاں پر لوگ زیادہ، یہ ڈیک ہے پیچھے، میں بھی دکھاتی ہوں، وہ بھی ہیں۔
यहाँ पर जो सर्दी होती है ना पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में जब सर्दी आती थी इतनी सर्दी नहीं होती जितने ये फेस का जो स्किन वहाँ काली हो जाती है, पता नहीं क्या है वो, वहाँ डस्ट है या कुछ है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये गर्मी खत्म हो जाती है, गर्मियों में मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं, स्किन बहुत काली हो जाती है। जो सन यहाँ पर बहुत तेज होता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ जितनी सख्त सर्दी जितनी भी हो ना, तो आपका जो कलर है, जो स्किन है, वो खराब नहीं होता यहाँ पर। सर्दी में बंदा फ्रेश हो जाता है, गर्मियों में यहाँ ऐसे जो धूप इतनी तेज होती है वो स्किन को जला लेती है। मेरा भी इधर से मैं दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को डक दिखाती हूँ, रियली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पीछे मैं दिखाती हूँ, ये इस तरफ मैं दिखाती हूँ, ठहरो। ये ये डक रियली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये यहाँ सर्दियों में ऐसा होता है ना, ये जो पानी है, ये अगर मैं लास्ट पिछले सालों की बात करूँ ना, तो ये सर्दियों में ये जगह है ना, ये बहुत, ये सारी ये फ्रीज हो जाती हैं। फिर यहाँ इस तरफ, ये इस इलाके में गोरे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। हर तरह के लोग, चाइनीज़ की मेजोरिटी में, जिनके पास पैसा है, क्योंकि ये इलाका बहुत महंगा है। तो यहाँ पर फिर बच्चे ना स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल आइस होता है, लेकिन इस साल कोई मुझे नहीं लगता कि आइस बनेगा। कहते हैं कि इस दफ़ा स्नो कम होगी। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्नो कम होगी। चलो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, आप लोगों को मैं ऊपर से दिखाती हूँ। ये उस तरफ में आप लोगों को नज़र आ रहा है, जैसे ही ऊपर आ जाओ ना, ज़्यादा तेज़ हवा होती है। ये भी है, डेक बना हुआ है। वो पीछे सारा उस तरफ ये रोड, ये सब वहाँ उस तरफ भी लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उस तरफ भी बड़ा बहुत गाड़ियां नजर, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये वहाँ भी पार्किंग लॉट है, और इस तरफ भी है, पीछे भी हैं। अभी तो मुझे लगता है 4 तो बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ यानी जो नॉर्मली यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी हैं, और इधर उधर से भी। जैसे मैं एक मील का या 5 मिनट का फासला तय करके यहाँ आई हूँ, तो इस तरह सभी लोग यहाँ आ जाते हैं, वॉक शॉक करके, घूम फिर के। या पीछे जो है मेन स्ट्रीट है, वहाँ पे काफ़ी के रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर वो खुश होके चले जाते हैं। देखो व्हील चेयर वाला बंदा भी है, वो भी आया हुआ है। यहाँ पर कल जैसे न्यू ईयर थी ना, पाकिस्तान में भी शायद वो, वहाँ भी लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, शायद यहाँ भी किसी का होगा। लेकिन जो फैमिली वाले हैं, मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, अपने बच्चों की बात करूँ ना, तो हम मैं नॉर्मली, कल तो वैसे मैं देर से सोती हूँ, कल तो मैं 11:30 बजे ऊपर चली गई थी। और मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर पर होते हैं, कभी नहीं जाते मेरे बच्चे, तो कभी भी कहीं नहीं जाते, आराम से घर पर होते हैं ना। मेरे बच्चों की इतनी ज़्यादा लोगों के साथ दोस्त हैं या कुछ भी नहीं है, अपने कामों में हम अपने उसमें बिजी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि या हम कनाडा में रहते हैं, हमारा माहौल ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजोरिटी जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। पाकिस्तान में जैसे हल्ला गुल्ला लोग करते हैं, यहाँ तो मैंने अपने लोगों का कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ ज़्यादा ही उसको फॉलो करते हैं, अपने रिलीजियस उसको ना। ऐसा नहीं है कि हम ये यहाँ कनाडा में रहते हैं और इन लोगों के पीछे हम भागने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक का अपना अपना होते हैं। बहुत सारे और लोग भी हैं, बहुत, ये उसके इंडिया हो गया, श्रीलंका के, यानी मेरे साथ जॉब भी लोग करते हैं, सब अपने अपने उसमें बहुत सख्त है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ गए हैं तो हम ये गोरों लोगों की तरह, यानी मेजॉरिटी जिसकी मैं बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं। अपने उसको फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं ये न्यू ईयर हल्ला गुल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं, हम नॉर्मल तरीके से होते हैं। हाँ, किसी के घर में खाना पीना या कोई दावत या कुछ है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, ये सारे न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं, फिर हमारे लोग भी ऐसे करते हैं कि किसी ने बहन के घर दावत हुई,
माँ के घर, भाई के घर, ऐसा सबका ही चलता रहता है। और ये छुट्टियों में बच्चों की भी छुट्टियाँ होती हैं और बहुत सारे लोग भी एक आध छुट्टी ले लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है। ये 25, 26 और उसका ये जनवरी 1 का हो गया, बीच में 2 छुट्टियाँ अपनी भी आ जाती हैं। जैसे मैंने अपनी जॉब से मैंने छुट्टी ली, ये छुट्टियाँ थी कुछ मेरे 2 दिन मेरे जो अपने ऑफ होते हैं, बीच में मैंने दिन छुट्टियाँ ली तो मेरे हो गए 7, 8, 9 दिन मेरे बन गए। तो कल से मैं इंशाल्लाह जॉब पे जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं छोटी-सी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, बहुत दुआएँ, नए साल की खुशियाँ सबको मुबारक हो। तो मैं भी थोड़ा-सा आगे जाती हूँ, मैं आप लोगों को और कुछ दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से ज़्यादा वीडियो लंबे नहीं बनाते। थोड़ा-सा आगे जाते ही आप लोगों को सब दिखा दिया, बहुत खूबसूरत है, सारा दिखा दी। रियली मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सुकून, ये खामोशी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, रियली आई एम सो हैप्पी। ये मैं इस तरफ आई हूँ, आज की वीडियो तो मेरी अलग तरह है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये जो आदमी घर के पास खड़ा है, ये स्मोकिंग कर रहा है ना। तो हमारे मुल्कों में क्या है कि लोगों के दरमियान में बैठ के लोग ये पी रहे होते हैं ना, सिगरेट पी रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लोग घर में भी नहीं पीते, ना महफिल में अलाउड है यहाँ पर, ना इंडोर अलाउड है स्मोकिंग। और ना तो आप बस स्टॉप पे जो बाहर खड़े होते हैं वहाँ भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। इस चीज़ से ये फाइन है बहुत ज़्यादा। अपने घर में तो आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखो अभी वो बंदा अंदर चला गया। यहाँ लोग घरों में कोई भी सिगरेट नहीं पीते, ना फैमिली के दरमियान पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ मैं बताना चाहती थी, मैंने कहा मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन चलो आज मैंने थोड़ी सी बात कर ली। शाम हो गई है अभी, बस मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मैंने कहा मैं थोड़ी-सी ये जगह भी दिखा दूँ। वो आदमी नज़र आया तो मैंने वो आपको तो मैं मेरा दिल था कि किसी दिन मैं इस बात पे, इस पे चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ। ये लोग पाकिस्तान में भी जब मैं गई थी 2018 में गई थी दर्जे के पास जाने, तो वहाँ तो इतने आपके सामने लोग बैठ के स्मोकिंग करते हैं। यहाँ पर ऐसे मुझे तो फिर एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील होती थी। मैंने कहा यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, लेकिन इस तरफ यहाँ हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ फ्री है, लेकिन कानून है। यानी सिगरेट तो पाकिस्तान में लोग आम पीते हैं, सबके सामने पी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एक लॉ है और फिर वो फाइन करते हैं। अगर आपने अंदर इंडोर किसी ने सिगरेट पिया और उसको पकड़ लिया गया तो उसके ऊपर 5,000 तक जुर्माना लगता है, $5,000 तक जुर्माना लगता है। उम्मीद करती है आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी। मैंने तो न्यू ईयर के लिए बनाई थी। सबको बहुत दुआएं, बहुत खुशियाँ, नए साल की। तो आज ये शाम भी मैंने आप लोगों को दिखाई, पीछे भी बहुत खूबसूरत जगह दिखाई। रियली मैं खुद भी खुश हो गई। मेरे लिए ऐसा है जो मुझे देखने वाले हैं, चाहे कम देखने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया है तो वो मीडिया फैमिली होते हैं, मेरे लिए भी वो मीडिया फैमिली है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आवाज़ है दुनिया के हर बंदे के कानों के अंदर पहुँचे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।